New Hope TV, your encounter with God. Lift your hand and say, I will not be weary. अपने हाथ उठाकर कहें, मैं थकूंगा नहीं। I will keep on doing what God has called me to do. जो करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं उसे लगातार करता रहूंगा। It may be small in the eyes of man, but in the eyes of God it is very big. Hallelujah. भले इंसान की नजर में बहुत ही छोटा हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है। Go with me to the book of Hebrews, chapter 10, verse 35. काली इब्रानी के पत्र उसका 10वां अध्याय 35वें वचन में, Do not fling away your fearless confidence, for it carries a great and glorious compensation of reward. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, अपने हियाव को ऐसे ही छोड़ के बह ना जाओ, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत ही बड़ा और महान है। Said everyone, do not cast away your confidence. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। Your confidence is not in man, your confidence is in the word. आपका हियाव जो है किसी इंसान में नहीं है, आपका हियाव वचन में है। So do not cast away your confidence. You see, it says, if you don't cast away your confidence, if you don't give up, you will have a great reward, which will go beyond your lifetime. और देखिए वचन कहता है कि अगर आप अपना हियाव नहीं छोड़ते हैं, तो आपको एक बड़ा महान प्रतिफल और इनाम मिलेगा, जो आपकी जिंदगी के परे जाएगा। The next one. अगला, Everyone say, for in due season we shall reap. सही समय पर हम उसकी फसल काटेंगे। You know, in the morning when I was meditating on this, और देखिए सुबह के समय जब भाई इस पे मनन कर रहे थे, the Holy Spirit told me to tell the people over here. पवित्र आत्मा ने इनसे कहा, यहाँ आए लोगों को बताने के लिए, Tell the people. लोगों से कहना। You know, many of them, they think their season will not change. और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका सीजन यानी उनका दौर जो है नहीं बदलने वाला। उनका ऋतु नहीं बदलेगा. Today, लेकिन आज, Pastor, I am going through a certain season in my life. I have been legally bound. I have been attacked. I have been said something. What should I do? Please listen. The first thing today that you need to do is expect your season to change. और देखिए सबसे आप कह रहे हैं कि आप बंधे हुए हैं या आप किसी प्रकार के ऋतु या दौर ऐसा चल रहा है जहां पर आप अपने आप को बंधुआई में पाते हैं, चीजें आपके खिलाफ में बोली गई हैं, लेकिन जरूरी है कि पहली चीज जो आपको करना वो ये है कि आप परमेश्वर से अपेक्षा करें कि आपका ऋतु, आपका दौर बदल जाएगा। Say it everyone, expect my season to change. सभी लोग कहें, अपेक्षा करें कि मेरा ऋतु, मेरा दौर बदलेगा। If you don't do that, अगर आप ये नहीं करते हैं, even if God shows up in front of you, तो भले परमेश्वर ही आपके सामने क्यों ना प्रकट हो जाए, even if the prophetic word comes in front of you, और भले ही आपके सामने भविष्यवाणी का वचन ही क्यों ना आ जाए, you will still say the same thing. आप वही चीज बोलते रहेंगे, वही बने रहेंगे। You see, when God showed up in Egypt, आप देखते जब परमेश्वर मिस्र में प्रकट हुआ, when God showed up in Egypt with power, जब परमेश्वर सामर्थ्य के साथ मिस्र में प्रकट हुआ, you know, the people did not believe. आप जानते हैं वहां के लोगों ने विश्वास नहीं They किया। say, praise God for the miracles, praise God, Moses, you're a good man, Aaron, you're a good talker, but me, we are going to be slaves, our children are going to be slaves. But Moses told them, expect your season to change, because God is on the scene. Hallelujah. मूसा ने उनसे कहा कि तुम्हारा ऋतु, तुम्हारा दौर बदलने की अपेक्षा करो, क्योंकि परमेश्वर इस दृश्य में आ गया है। You see, when somebody gives a testimony, देखिए जब कोई आकर आपको गवाही देता है, you see, if God can do it for that person, आप देखते हैं जब परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कर सकता है, then God can do it for you. तो परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। I was in a place in Dubai, भाई दुबई में एक जगह पे थे, and I was prophesying over one lady. और एक महिला के ऊपर भाई भविष्यवाणी कर रहे थे। I called out her name. उनका नाम पुकारा गया। That's okay. ठीक है। I told her complete details about her house. उनके घर के बारे में सारी जानकारियां बताई गई, And you know, that lady was like, और वो महिला देखो हाँ। And I said, God, why do you talk to such crazy people? और मैंने कहा परमेश्वर आप ऐसे बुद्धू लोगों से क्या बात करते हैं? And there was one lady, just behind her. और उनके पीछे एक महिला थी, I did not even look at her. और भाई ने उनकी ओर देखा भी नहीं, And she was like, yes. और वो उछल के कहने लगी हाँ। After I went from her, और जब भाई उनके पास से आगे गए, Pastor, पास्टर, so much God spoke to you if you only expect your season to change. Now, I went to this lady. I said, देखिए इस why? औरत के पास गए, I said, lady, I didn't speak anything to you. You're jumping so much. You know what she said? Now hear this. और मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन Yes. आप इतना उछल रही थी। I called her. I said, ma'am, come. और उन्होंने कहा मैम आगे आइए। She said, Pastor, उन्होंने बताया पासवान जी, if God has spoken to somebody one row in front of me, अगर परमेश्वर ने किसी ऐसे व्यक्ति से जो एक कतारी मुझसे आगे है, that means God is in my neighborhood. अगर परमेश्वर ने Jesus. मुझसे आगे एक ही कतार आगे वाले से बोला है, तो इसका मतलब परमेश्वर मेरी कतार में आ गया है। परमेश्वर मेरे आंगन में आ गया है. I said, lady, great is your faith.
मैंने कहा ये रहा विश्वास। She said, of course, Pastor. उन्होंने कहा यकीन। And I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ when God speaks to somebody in the row, let me tell you, that means the Lord is in the row now. जब Hallelujah. परमेश्वर किसी से आपकी कतार में बात करता है या आगे वाली कतार में, तो समझ लीजिए परमेश्वर उस कतार में है, वहां पे है। You know, you have a wrong understanding of God, some of you. देखिए आप में से कुछ लोगों के पास परमेश्वर के बारे में अलग ही गलत विचारधारा है। God is not somebody whom you can carry in your pocket, you know. परमेश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अपने जेब में या बटुए में रख के घूम सकते। We don't carry God. हम परमेश्वर को उठा के नहीं चलते, He carries us. वो को उठा के चलता है। If God touches somebody there, मान लीजिए परमेश्वर किसी को वहां छूता है, that means इसका मतलब God has come in the hall. परमेश्वर हॉल में आ गया है। He's bigger than anybody. वो हर एक से बड़ा है। Somebody say, I receive this word. कोई क्या मैं सोचा को ग्रहण करता हूँ। The third thing I want to say, expect your season to change. तो तीसरी चीज जो मैं कहता हूँ वो ये है कि आपका दौर बदल जाए, इसकी अपेक्षा करें। I prophesy to somebody, your season is about to change today. और मैं भविष्यवाणी करता हूँ किसी के लिए, आपका दौर, आपका ऋतु बदलने जा रहा है आज। That is how you change your season. इसी तरीके से आप अपने ऋतु दौर को बदलते हैं। Keep saying to yourself throughout the week, my season is about to change for the better. My season is about to change in the name of Jesus. और पूरे हफ्ते भर आपको ये कहते रहना है कि मेरा ऋतु, मेरा दौर बदलने ही वाला है, मेरा ऋतु, मेरा दौर बदलने ही वाला है, यीशु के नाम में। By what you confess, you will possess. जो भी आप अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, वही आप पाएंगे। The last one right now. और आखिरी, Galatians 6 and verse 9. और निकालिए गलातियों का 6वां अध्याय 9वां वचन। We shall reap when? If we do not lose heart. और देखिए वचन कहता है जब हम ढीले नहीं पड़ेंगे तो हम फसल काटेंगे। क्या बात है? If we do not lose heart, we do not give up. अगर हम हार नहीं मानते, अगर हम ढीले नहीं पड़ते हैं। There was a pilot in 1947. I was just reading it in the encyclopedia. एनसाइक्लोपीडिया में दर्ज है, भाई पढ़ रहे हैं। एक पायलट थे 1947 He was a fighter pilot. और वो फाइटर पायलट थे। And they were doing an experiment. और वे एक प्रकार का प्रयोग कर रहे थे। And the radio control saying, push it. और वे ऐसा बताया जा रहा आगे बढ़ना है। And he is pushing the throttle. And he reported back. He says, my wing is shaking. My whole plane is shaking. He says, don't push it. और उन्होंने बताया कि पूरी मेरी जहाज जो है हिल रही है और जहाज के पंख भी पूरी से लड़खड़ा रहे, हिल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा फिक्र मत करो, बढ़ो आगे। At one point, और एक स्तर पे आके the airplane started nearly cracking up. और वो And, जो and the जहाज जो था टूटने के कगार पे आ गया and एकदम। the air control said, come back now. और फिर एयर कंट्रोल वाले ने कहा वापस लौटाओ। But this man, लेकिन ये आदमी, he said, no, इसने कहा नहीं, I've come this far. इतनी दूरी तक मैं आया हूँ, Let me just push it a little bit more. चलो मैं थोड़ा और भी आगे जाता हूँ। And when he did that, जब उसने किया, there was a boom, boom, like this, you know. एक बड़ा धमाका हुआ। And 1947, 1947 man broke the sound barrier. उस व्यक्ति ने साउंड बैरियर को तोड़ दिया। And that plane, after that rattling and shaking, suddenly, surprisingly, was smooth sailing. और फिर वो जहाज जो एकदम ऐसे लड़खड़ा रही थी, हिल रही थी, डुल रही थी, अचानक वो जाके एकदम आराम से उड़ने लगी। That test flight और वह जब प्रयोग किया गया, gave rise to the supersonic jet, breaking the sound barrier. और सुपरसोनिक जेट जो है उसके लिए उसने रास्ता तैयार किया। One man, एक आदमी, because he pushed, क्योंकि वो आगे गया, he discovered a new territory. उसने एक नए इलाके को खोज निकाला। I tell you, मैं कहता हूं आपसे, something is waiting on the other side. कुछ तो दूसरी और इंतजार में है। The devil knows it. That's why he's opposing you. और शैतान जानता है, इसलिए वो आपका सामना करता है, विरोध करता The है। pearls are not found on the seashore. Some broken coconuts are found on the seashore. और मोतियां जो है समुद्र के किनारे नहीं मिलती हैं, कुछ टूटे हुए नारियल के टुकड़े मिल जाते हैं। And many people are wise. They don't put broken coconuts in their neck now. अब लोग जो होते हैं बुद्धिमान है, वे टूटे हुए नारियल को अपने गदे में लेके नहीं चलते। Ladies are smart. महिलाएं बहुत ही They होशियार, want something what is on the other side. और वो उन्हें कुछ वो चाहिए होता है जो दूसरी ओर है। We will reap हम काटेंगे if we don't give up. अगर आप हार नहीं मानेंगे तो। Pastor, what do you mean? पासवान जी, आपके कहने का मतलब क्या है? Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोले, Do what God has called you to do. जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है वो करें। When no one pats your back. जब कोई आपकी पीठ नहीं थपथपाता, When you feel there is no appreciation. जब आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको तारीफ नहीं कर रहा, You keep on doing. आप करते You रहिएगा, keep on pushing. आप आगे बढ़ते रहें। And I tell you, you'll boom, something will break. And suddenly you find, hey, I'm in a new place now. Hallelujah. अचानक आप पाएंगे कुछ टूट जाएगा और कहेंगे अरे मैं नए इलाके में आ गया हूँ। You know, some people are there, they will not even call you if they are not coming. और देखिए कभी कभी क्या होता है कि वे लोग देखिए कॉल भी नहीं करते जब आते हैं तो They take you for granted वे आपको हल्के में लेते हैं, because you're every day there. क्योंकि आप हर दिन आते ना वहाँ। क्यों नहीं आया? ऐसे ही। अच्छा,
जब मुझे तेरी जरूरत है तू नहीं आता है, लेकिन जब तेरी जरूरत है तो तू सोचता है कि 2 बजे भी कॉल करूं मैं तेरा फोन उठाना हूं. हाउ स्मार्ट यू आर. कितने होशियार हैं आप. And I've gone through this. इसमें से गुजरा हूं मैं. Team members whom you prayed for, whom you lifted up, they would just quit you. वे मंडली के लिए जिनके लिए आपने प्रार्थना किए थे उनको ऊंचा उठाया, बस यूं ही They छोड़ would देते go आपको. after greener pastures. और वे हरियाली को देखकर आपको छोड़ जाते हैं. Somebody who talk like hello, hi. और कोई ऐसा जो हेलो कैसे हैं आप ऐसा बात And we करते were हैं. like Kurla gaon walas. और हम कुर्ला के गांव वाले लोग, Hello, how are you? They want style. उन्हें स्टाइल चाहिए They होता है. want white skin. उन्हें गोरी चमड़ी चाहिए होती है. How are you this morning today? इस सुबह कैसे हैं आप लोग. Smoke, when you say hallelujah, from down the smoke will come. और जब आप कहते हैं हालेलुया तो नीचे से धुआं निकलने लगता है. क्या solid है ना उधर? And here we are fasting for 2 days. और यहाँ पर हम 2 दिन तक उपवास में लगे रहते हैं. For a 2 o'clock service. 2 बजे की सभा के लिए. From 10 o'clock we are fasting and praying in the morning. और सुबह 10 बजे उपवास और प्रार्थना में लगे हुए हैं. People not come. So little dishwashers, sweepers, these people, they started getting touched. और फिर देखिए लोग नहीं आते थे, लेकिन जो बर्तन मांजने वाले छोटे मोटे काम करने वाले वो लोग आते और छू लिए जाते. I used to tell them, open Zechariah. और मैं उनसे कहता जकरिया की पुस्तक खोलो. The service used to get over. They did not find Zechariah. सभा खत्म हो जाती थी लेकिन को जकरिया की पुस्तक नहीं मिलती थी. I used to get frustrated. और मैं हताश हो जाया करता था. Why, Lord? क्यों प्रभु. But the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा don't give up. हार मत मानो, In due time, सही समय पर you will reap. Hallelujah. तुम फसल काटोगे. हालेलुया. Hold on to the Lord. प्रभु को थामे रखें. Don't give up. हार मत मानिएगा. Your season is about to change. आपका ऋतु बदलने ही वाला है. Somebody lift your hand and shout a big hallelujah. कोई अपने हाथों चिल्लाए हालेलुया.